the today's topic is about conversion rate optimization. Guys, ये जो topic है conversion rate optimization is very important to you. If you are running a business, then also it is important. If you are running an agency for your clients, then also it is important. For each and everything, the conversion rate optimization is very important. And today we are going to see all the techniques how to optimize your conversion. What are some techniques in the terms of ads, in the terms of PPC, and in the terms of landing page, just as website. We are going to see each and everything about this. Okay. So, guys, it is each and every businesses must be concentrated on conversion rate optimization. जैसे हम लोग search engine optimization पे कैसे concentrated करते हैं. Why we do search engine optimization, guys? Because we have to bring your website to the first page of the Google. But guys, वो तो है, आपकी website first page पे आ जाएगी. But if you're not optimizing the conversion rate, you're not optimizing the conversion rate, then it will be more difficult to generate the revenue of your company or of your client. पहली बात ये है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करो, इट इज वेल एंड गुड, यू विल बी द एक्सपर्ट, आप एक्सपर्ट रहोगे, बट उसके साथ साथ कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कन्वर्जन रेट आप ऑप्टिमाइज नहीं करोगे ना गाइस, तब तक आपको रेवेन्यू नहीं आएगा. और गाइस, आपको तो मालूम ही रहता है कि बिजनेस में रेवेन्यू नहीं आएगा तो ग्रोथ नहीं होएगा उस बिजनेस. So guys, today we are going to see all the important things. Okay. So first of all, guys, I will just introduce myself. Who am I? Yes, about me, myself, Omkar Pawar. I am a digital marketing expert and a trainer. With that, I am a startup consultant also. I just give some consultant ideas to the startups. With that, I am a brand development expert. Guys, business और brand इन दोनों में बहुत फर्क होता है. बिजनेसेस जो होते हैं ना गाइस, उन लोग को उनके ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ती है, खुद बिजनेस को अट्रैक्ट होने की जरूरत पड़ती है. बट ब्रांड्स को ना गाइस अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती, उनके जो ऑडियंस है वो ऑटोमेटिकली उस ब्रांड के पास जाते हैं. जैसे कि एक Amazon फॉर एग्जांपल, हम लोग को कभी भी ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स बाय करने देते हैं, एनी टी शर्ट और एनीथिंग, वी जस्ट गो टू द Amazon एंड वी लुक एट द प्राइस. So this is the brand. We हम लोग खुद हैं Amazon के, right? So this is the brand, guys. I'm expert in that also. I have just मैं बहुत सारे बिजनेस को ब्रांड्स में कन्वर्ट कर दिया इन दियर लोकल एरियाज. So they are getting lots of customers. With that, I'm a website designing expert, search engine marketing expert, social media marketing expert, Google ad expert with an experience of 4+ years, guys. So guys, I just work with various brands. First of all, I just work with Redleaf, Beat Pandit, Anubhav, LIC of India, Star Insurance, Stupid Skill, and a digital. Guys, I am a trainer also, but I am also doing a freelancing also with various clients and with some other clients. So guys, I know how to optimize the conversion. It is how the search engine optimization is important for each and every business. Same goes with conversion rate optimization. Guys, search engine optimization में हम लोग मेनली क्या करते हैं, हम लोग की खुद की वेबसाइट बनाते हैं और उसको गूगल के फर्स्ट पेज पे लाने के लिए उस वेबसाइट को हम लोग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, मतलब उसको बहुत अच्छे से डिजाइन करते हैं, अच्छे से कंटेंट डालते हैं, जो अलग अलग टेक्निक्स हो, राइट. हम लोग का मेन कंसेप्ट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. बट गाइस सोचो ना, आपकी वेबसाइट, आपकी जो वेबसाइट आपने उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर दी और वो गूगल के फर्स्ट पेज पे आ रही है और बहुत जन उस वेबसाइट पे जा रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ रही है, बट कोई कस्टमर नहीं बन रहा है आपका. आपके जो वेबसाइट पे आ रहे हैं देयर विल बी द ऑडियंस और वो कोई कस्टमर्स नहीं बनते. दैट्स द मेन थिंग. गूगल के फर्स्ट पेज पे होने के बाद भी आपकी वेबसाइट पे लोग आते हैं पर उन लोग कस्टमर नहीं बनते, तो मतलब आपके लैंडिंग पेज में कुछ तो इश्यू. दैट्स द मेन. एंड देयर कम्स द कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन. फर्स्ट थिंग गाइस, व्हाट इज मीन बाय CRO? कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म है जिसका नाम है CRO. Okay. The conversion rate optimization is the process of optimizing your sponsor search ad. सर्च एड भी आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो. लैंडिंग पेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, लैंडिंग पेज. एंड ओवरऑल वेबसाइट डिजाइनिंग टू रेस योर कन्वर्जन रेट. In other words, the goal is for highest possible percentage of visitor.
to your site to convert and complete your desired action. Guys, मतलब क्या? Now let's assume that this is my website. Okay, we will just assume that this is my website. Now guys, this website पे daily base पे 1000 2000 आते हैं. उन लोग इस वेबसाइट पे आते हैं, right? They are coming on this website. अभी इस वेबसाइट पे एक्शन करना जरूर होती है. एक्शन मतलब कन्वर्जन. अभी इधर अपॉइंटमेंट कवर्ड है. इस पे मेरे जो ऑडियंस है उन लोग क्लिक करना चाहिए. क्लिक के बाद उनको एक फॉर्म आएगा, उन लोग के फॉर्म फिल करना चाहिए. दैट इज मेन कन्वर्जन. उसको बोलते हैं कन्वर्जन. उसको कन्वर्जन मतलब एक्शन. अभी मेरी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे है. assume that नहीं है, but assume that मेरे फर्स्ट पेज पे है. There are lots of traffic on my website, but the main thing is that मेरे वेबसाइट पे ट्रैफिक होने के बाद कोई इस अपॉइंट बटन पे क्लिक नहीं. Why? Because I have not optimized the conversion rate. Conversion rate आपको अपने ऑप्टिमाइजेशन नहीं की. प्रॉफिट सर्विस का मेरा पेज है, where I am just providing various services of digital marketing. उसमें भी गाइस मेरे वेबसाइट पे समझो 1000 जन आ रहे हैं, 1000 जन डेली बेसिस. तो 1000 जन में से बस एक दो फॉर्म फिल कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं. फॉर्म फिल करना मतलब कन्वर्जन हुआ. कन्वर्जन इज इक्वल टू एक्शन. अभी कोई कर रहा नहीं है तो मतलब क्या, मेरे लैंडिंग पेज में कुछ तो इश्यू है, इसलिए कोई एक्शन नहीं कर रहा है. एक्शन मतलब कन्वर्जन. दैट्स द मीनिंग. So how to optimize your conversion? That we are going to see in this session. As it is a small session and it is interesting and it is very important for you also. Now guys, how to calculate the conversion rate optimization? I hope so आपको proper समझा रहेगा conversion rate optimization क्या होगा. आपको समझा रहेगा तो आप चैट सेक्शन में yes कर दो if you got it. इसको नहीं समझा तो मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ. Each and everyone, please let me know आपको समझा है कि नहीं चैट सेक्शन में. Yes, Shweta. Other guys, please respond. Thank you so much, guys, for your response. Now, guys, uh, how to calculate the conversion? Guys, I have written a small equation. Guys, see, conversion rate percent, total goal completion upon total website visit. Now, guys, this is my website for full stack digital marketing services. Okay? अभी इस पेज का मेरा गोल क्या है? अभी कोई भी इस पेज पे आया तो आपका एक गोल होता है ना गाइस, कोई भी मेरे इस पेज पे आ रहा है तो उसमें कौन सा तो एक एक्शन करना चाहिए. एक्शन मतलब कन्वर्जन हो गया. तो मेरा गोल क्या है इस पेज पे आने के बाद? मेरा गोल है गाइस कि इधर जो अपॉइंटमेंट है ना उस पे वो क्लिक करना चाहिए. इधर अपॉइंटमेंट, उसके नहीं तो इधर एक अपॉइंटमेंट है, इधर उसने क्लिक करना चाहिए. दिस इज माय गोल. ओके. नाउ गाइस आई हैव मैंने कन्वर्जन का क्या इक्वेशन क्या बोला है? टोटल गोल कंप्लीशन अपन टोटल वेबसाइट विजिट. अभी मेरे वेबसाइट पे हर रोज 1000 जन आते हैं, 1000 जन मेरे वेबसाइट पे आते हैं. बट 1000 जन में से कितने जन मेरे कन्वर्जन कर रहे? कन्वर्जन मतलब इस अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके एक्शन कर. दैट आई हैव टू कैलकुलेट. तो उसके लिए ना गाइस आपको कैलकुलेशन को उठाना पड़ता है. मैंने क्या बोला, गोल कंप्लीशन कितना कर दिया? चलो 100 जन ने मेरा अपॉइंटमेंट कर दिया, मतलब कन्वर्जन कर दिया. 100 जन डिवाइड बाय टोटल विजिट कितना हो रहा है? 1000 इंटू. तो 10% मेरा कन्वर्जन है. इस लैंडिंग पेज पे मेरा 10% कन्वर्जन रहेगा. सो गाइस, ये जो 10% होता है आपका, जो स्टार्टिंग का जो 10% होता है, जब भी आप स्टार्ट करते हो आपकी वेबसाइट को कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन करना, ये जो 10% है उसको आपको इंक्रीज करना पड़ता है. अभी आज 10% है तो नेक्स्ट वीक को 15% होना चाहिए, उसके नेक्स्ट वीक को 25% होना चाहिए. इफ इट इज डिक्रीजिंग, स्टार्टिंग का जो कन्वर्जन रेट है उससे बढ़ रहा है आपका हर वीक में आपका कन्वर्जन रेट, एंड इट इज वेल एंड गुड. उसका मतलब आपका वेबसाइट प्रॉपर है, आपकी कन्वर्जन बढ़ रहे हैं. बट इफ इट इज डिक्रीजिंग, 9 हो रहा है, 8 हो रहा है, then must be
उसका मतलब है आपकी वेबसाइट में कुछ तो इश्यू है। लोग आ रहे हैं आपके वेबसाइट पे, लोग कुछ तो उन लोग क्यों कन्वर्ट नहीं करते? उनको प्रॉपर गोल नहीं दिया जाता है, कॉल टू एक्शन नहीं पता है, उनको प्रॉपर रीड नहीं किया आपने, को प्रॉपर रोड नहीं पता है किधर कन्वर्ट होना है। आपने आपको उस पे आपको ये करना पड़ता है, चेंजेस करना पड़ता है। गाइस ये तो बस मैंने वेबसाइट पे बात बोला। फेसबुक की एड्स लाइक, तो सोचो हम लोग लीड जनरेशन कर रहे हैं, लेट्स अज्यूम दैट वी आर डूइंग अ लीड जनरेशन एड। अभी लीड जनरेशन में भी स्टेप्स होते हैं गाइस। जब भी जो लास्ट स्टेप होता है फॉर्म फिल करना ना गाइस, पर स्टार्टिंग का स्टेप्स क्या है? पहली स्टेप होता है आपके ऑडियंस का। आपके ऑडियंस ने आपके एड देखा, पहली बात क्या है, वो पहले इमेज देखेगा, फर्स्ट है उसका। सेकंड स्टेप क्या, वो आपका प्राइमरी टेक्स्ट पढ़ेगा। आपको बता देता हूँ गाइस, जस्ट अ मिनट। फेसबुक एड्स, नाउ गाइस दिस इज द एड ऑफ फेसबुक, राइट? अभी गाइस अपने जो ऑडियंस होते हैं वो कौन से प्रोसेस वो कौन से स्टेप पे जाते हैं जिधर जाके आपका कन्वर्जन हो सकता है। अभी इन टर्म्स ऑफ फेसबुक एड आपका मेन कन्वर्जन क्या है? लीड जनरेशन, मतलब फॉर्म फिल करना चाहिए। आपने ऑब्जेक्टिव ले लिया लीड जनरेशन, तो लीड जनरेशन में जो आपका कन्वर्जन रेट रहेगा वो फॉर्म फिल करना। अभी गाइस ऐसा नहीं है ना, तो जितने जन ने आपके ऐड देखा उन लोग सब आपके फॉर्म फिल करते, ऐसा नहीं होता है। 100 जन ने देखा तो उसमें से 20 जन ही आपका फॉर्म फिल करते, क्यों? राइट, क्यों? तो गाइस उनके एक स्टेप्स होती है लास्ट तक कन्वर्जन होने की। पहली स्टेप क्या होती है ऑडियंस की? पहला होता है आपकी इमेज, पहले उन लोग इमेज दिखते हैं, आपकी इमेज प्रॉपर है क्या नहीं, अट्रैक्टिव है क्या नहीं, उन लोग को देखते हैं। उसके बाद गाइस ये प्राइमरी टेक्स्ट, आपका प्राइमरी टेक्स्ट प्रॉपर है क्या? ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप आपकी हेडिंग, होता है ना हेडिंग, वो होता है। वो स्टेप आपका बटन, लर्न मोर, अप्लाई ना, जो भी है आप जिसका नाम दो, वो प्रॉपर है क्या नहीं। उस पर क्लिक करके आपके जो फॉर्म डिस्प्ले होता है उसके ऊपर का जो कंटेंट होता है वो प्रॉपर है क्या नहीं, उसके बाद वो कन्वर्जन होता है। तो गाइस हर चीज में, ईच एंड एवरीथिंग, लैंडिंग पेज में, फेसबुक में भी गाइस, एड्स में भी, गूगल में भी, हर इसमें कन्वर्जन रेट आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। जिस टाइम आप इस पे भी कॉन्सेंट्रेट करोगे गाइस, तभी जाके आप सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बनोगे। बस वेबसाइट लैंड फर्स्ट पेज पे लाना, एड को ज्यादा से ज्यादा तो लोग पहुंचना, उसका मतलब डिजिटल मार्केटर नहीं। जब भी आप आपके क्लाइंट्स को बेनिफिट दे रहे हो, उसको रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आप हेल्प करो, तभी जाके आप बोलोगे कि मैं एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर। और रेवेन्यू किससे बढ़ता है? कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन से। तो गाइस ध्यान में रखो, जब भी आपको कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइज कैलकुलेट करना है एट द स्टार्ट, अभी आप स्टूडेंट हो, आप स्टार्ट करने वाले हो आपकी डिजिटल मार्केटिंग, खुद की वेबसाइट बनोगे नहीं तो क्लाइंट की वेबसाइट बनोगे, तो एक महीने के बाद एक इक्वेशन यूज करके थोड़ा देखो कि कितने कन्वर्जन हुए, कितने लोग ने आपके कन्वर्जन रेट हुए और कितने जन आपकी वेबसाइट। उस टाइम जो आपका परसेंटेज रहेगा आपका कन्वर्जन रेट का, और उसका नेक्स्ट वीक में वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, वो भी देखो। इफ इट इज इंक्रीजिंग, वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो वैसे की वैसे। दैट्स द मेन। नाउ गाइस, व्हाई कन्वर्जन रेट इज ऑप्टिमाइज, तो आपको प्रॉपर समझाइए। Conversion rate optimization is important because it allows you to lower your customer acquisition cost by getting more value from the visitor and user to already have. Guys, इससे क्या होता है मालूम है गाइस? कन्वर्जन रेट से भी आपकी जो कॉस्ट होती है, सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर एक, वो लेस होती है। हम लोग जो डिजिटल मार्केटर होते हैं वो एक क्लिक के लिए भी पैसा देते हैं। जब भी आपका कन्वर्जन रेट ज्यादा होता है, उससे आपके जो सीपीसी, एक क्लिक नहीं तो इंप्रेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, वो आपका कम होता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती, कम पैसे में भी आप कन्वर्जन रेट ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आपका लैंडिंग पेज रेलेवेंट होता है, रेलेवेंट। ना गाइस आप सोचते रहोगे कि कन्वर्जन रेट, ये गोल को ट्रैक कैसा करना, राइट? कन्वर्जन रेट को, जो कन्वर्जन होता है, एक्शन होता है, उसको ट्रैक कैसे करना। हम लोग को कैसे समझे कि हम लोग, हाँ, आप बोलोगे मेरे वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही हो, हम लोग को समझ रहा है एनालिटिक्स, बट वो कन्वर्जन रेट कैसे ट्रैक करना, वो एक्शन कैसा ट्रैक करना। अभी सोचो गाइस, इस वेबसाइट में हम लोग की रिक्वायरमेंट क्या है? कोई भी मेरा होम पेज पे आ रहा है, ठीक है, हु इज कमिंग ऑन माय होम।
ये मेरा होम पेज, ये मेरा लैंडिंग पेज, कोई भी मेरे होम पेज पे आ रहा है तो मेरा इसमें कन्वर्जन क्या रहेगा, कोई भी कॉन्टेक्ट अस में हो जाना चाहिए, कॉन्टेक्ट अस पेज को ओपन करना चाहिए। ये कॉन्टेक्ट पेज ओपन किया मतलब मुझे समझा कि मेरा कन्वर्जन हो गया। अभी इसको कैसा ट्रैक करना है, तो ट्रैक करने के लिए गाइस आपको मालूम मिलेगा एक टूल आता है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स, इससे ना आप खुद का जो भी आपका कन्वर्जन है, जो भी आपका एक्शन आपको ट्रैक करना है, आप ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि जब तक आपने ट्रैक ही नहीं किया तो आप परसेंटेज नहीं निकाल सकते। दैट्स द मेन थिंग। तो आपको एक नंबर नहीं मिलेगा जब तक आप ट्रैक नहीं करोगे। तो उसके लिए ना आपको गूगल एनालिटिक्स का यूज करना पड़ता है, जिसमें आप कन्वर्जन ट्रैक कर सकते हो। नाउ इन टर्म्स ऑफ मी, मेरे टर्म्स में, मेरी वेबसाइट में मेरा कन्वर्जन क्या है गाइस, कि मेरे जितने भी ऑडियंस आ रहे हैं मेरे वेबसाइट पे, उन लोग कॉन्टेक्ट अस पेज पे जाने चाहिए, क्योंकि कॉन्टेक्ट अस पेज पे मेरे सब कनेक्टिविटी के स्टेप्स है, तो मेरे वो स्टेप्स जाने चाहिए। उसके लिए ना गाइस मैं क्या करूंगा, एक कन्वर्जन ट्रैक करूंगा। सीरियस, इधर देखो, इधर कन्वर्जन का एक ऑप्शन है, आपको तो सिखाया जाएगा ये प्रॉपर गाइस एनालिटिक, तभी भी मैं आपको सिखाता हूँ। कन्वर्जन गोल्स ओवरव्यू का एक ऑप्शन, आपको क्या करना है, नया सेटअप करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना पड़ता है। इधर गोल का ऑप्शन है, देखो गाइस, सेटिंग्स में जाने के बाद इधर गोल का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद इधर न्यू गोल का एक ऑप्शन आता है गाइस, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आप है ना गाइस, आपके जो कन्वर्जन है वो आप ट्रैक कर सकते हो गाइस। तो आपको समझेगा कि कितने जन ने मेरी वेबसाइट, मेरे डेली बेस पे मेरे वेबसाइट पे 1000 जन आए, तो मेरा गोल क्या था, कॉन्टेक्ट अस पेज पे जाने चाहिए। तो 100 जन में, 1000 जन में 1000 जन से कितने जन ने कॉन्टेक्ट अस पेज पे गए, तो कैसे समझेगा मुझे, विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन न्यू गोल। तो इस ऑप्शन का यूज करके आप कन्वर्जन ट्रैक कर सकते हो, आपको कितने जन ने कन्वर्जन किया, तो उस कन्वर्जन ट्रैक करने के बाद आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हो। तो आपको समझेगा कि आपका कन्वर्जन रेट परसेंटेज, और उसको आपको डेली बढ़ाना। गॉट इट गाइस एवरीवन? सर एक बार और बताएं। ओके, आपको क्या करना है गाइस, कि आपको कन्वर्जन रेट, कन्वर्जन जो होता है उसको आपको ट्रैक करने की जरूरत है, क्योंकि सोचो ना गाइस, आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं और आपको समझे रहे नहीं है कि कितने जन ने कन्वर्जन किया, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे आपका कन्वर्जन रेट परसेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कन्वर्जन जो हो रहा है उसको ट्रैक करना, कितने जन आपका कन्वर्जन, आपके एक्शन कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको गूगल एनालिटिक्स का यूज करना पड़ता है, जिसमें सेटिंग्स में जाके इधर न्यू गोल का एक ऑप्शन, अभी ये मेरे लिए ओपन नहीं है क्योंकि ये डिजिटल ट्रेनिंग का एनालिटिक्स है। तो इस पे क्लिक करने के बाद आप नया, आपको जिस कन्वर्जन को आपको ट्रैक करना है उसको आप ट्रैक कर सकते हो। तो आपको समझेगा कि आपके कन्वर्जन कितने हो रहे हैं। लेट्स अज्यूम दैट आपके आज के दिन में आपके कन्वर्जन हुए 100 आपके कन्वर्जन हुए, बट विजिट कितने हुए, ट्रैफिक कितने आए, 1000 जन। तो 1000 जन को आप कैलकुलेट कर सकते हो किस तरह, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो आपको समझेगा ना कि 10% मेरा कन्वर्जन रेट, उसी 10% को आपको डेली बेस पे हर वीक आपको इंक्रीज करना। कैसे इंक्रीज करना वो मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत ले, इस सेशन में आपको बताऊंगा, पर इतना समझ। गॉट इट गाइस, ईच एंड एवरीवन? तो चैट सेक्शन में यस यस कर दो, शॉप नाउ, यस, एनीथिंग आप कर सकते हो। यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। नाउ गाइस, व्हाई कन्वर्जन रेट इज इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बोला ऑलरेडी कि आपका जो एक कॉस्ट पर क्लिक होता है वो कम होता है। बाय ऑप्टिमाइजिंग योर कन्वर्जन रेट यू कैन इंक्रीज द रेवेन्यू पर विजिट, एक्वायर मोर कस्टमर्स एंड ग्रो योर बिजनेस। देखो गाइस, मैंने आपको पहले सेक्शन में, पहले स्टार्टिंग में बोला, आप रेवेन्यू इंक्रीज करो, आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे होगी, इज वेल एंड गुड। तो आपका कन्वर्जन रेट प्रॉपर नहीं रहेगा ना, तो फर्स्ट पेज पे होने के बाद भी आपका कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कन्वर्जन। आपकी वेबसाइट है ना सेकंड पेज पे रहना, इस वेल एंड चलेगा, पर उसके साथ कन्वर्जन रेट हो रहा है क्या नहीं, वो भी देख। सेकंड पेज पे होकर भी आपका कन्वर्जन रेट इंक्रीज हो रहा है, दैट मंथ चलेगा, दैट मंथ योर वेबसाइट इज प्रॉपर, आपके एड्स प्रॉपर चल।
For example, if a landing page has a conversion rate of 10% and receive 2000 visitors a month, then the page will generate 200 conversion per month. मैंने क्या बोला, सिंपल एक कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन का यूज करके उन लोगों ने बताया है कि 10% का आपका कन्वर्जन रेट रहेगा और उसमें से 2000 लोग मंथली विजिट कर रहे हैं, तो आपको कितना कन्वर्जन हो रहा है? 200 कन्वर्जन पर मंथ. If the conversion rate can be improved to 50%, इधर 10% था guys, फिर 15% हो गया by optimization different elements on the page. ऑप्टिमाइज कैसे हो रहा है गाइस? एलिमेंट्स, आपके जो पेज होते हैं वेबसाइट पे, उसके एलिमेंट्स पे आपको थोड़ा चेंजेस करना पड़ता है. द नंबर्स ऑफ जनरेट जंप्स फ्रॉम बाय 15% टू 200 पर मंथ. तो जिस टाइम आप आपके जो पेज के एलिमेंट्स उसको अच्छे तरीके से बनाओगे, तो आपको तभी जाके आपका जो कन्वर्जन रेट 10% टू 50, 50% टू 20, 20 टू 25, 25 से 30, इस तरह आपका इंक्रीज होगा. There is always room for improvement when it comes to increase the conversion, and the best companies are constantly iterating and improving their site and apps to create a better experience for the user and grow conversion. Guys, आप बोलोगे नहीं मेरा वेबसाइट हो गया मतलब मेरी वेबसाइट, मेरा बिजनेस का डिजिटल मार्केटिंग हो गया. ऐसा नहीं होता guys. वेबसाइट होना कंपलसरी, बिकॉज वेबसाइट इज द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर बिजनेस. बट गाइस, उस वेबसाइट पे आके उस वेबसाइट से आपको कुछ रेवेन्यू नहीं मिल रहा, तो उस वेबसाइट का कुछ फायदा ही नहीं है. हम लोग को बोलते हैं, हम लोग घर वाले बोलते हैं, एक बच्चा नहीं तो कोई भी एक बच्चा घर पे बैठा है, उससे वो बस बैठा है, सुबह उठता है, लेट खाता है और सो जाता है, कुछ ये नालायक ऐसे हम लोग को कुछ भी बोलते हैं कि आपसे उनको कुछ बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है. कि घर वालों, उनकी भी एक होती है ना ख्वाहिश होती है कि वो बड़े हो जाए, जॉब करे, खुद का बिजनेस हो. वैसे ही आपकी वेबसाइट का भी, आपकी वेबसाइट होके उस वेबसाइट से आपको कुछ रेवेन्यू नहीं आ रहा, तो कुछ यूज ही नहीं है आपकी वेबसाइट पे. आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे है, और उस फर्स्ट पेज पे होने के बाद भी आपका कन्वर्जन रेट इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, कुछ फायदा ही नहीं है. इससे अच्छा सेकंड पेज पे होके भी आपका कन्वर्जन रेट इंक्रीज हो रहा है, दैट इज वेल एंड गुड. तो गाइस ये सब होता है, इंपॉर्टेंस होता है कन्वर्जन रेट के और बिजनेस. गाइस अभी सीआरओ इन द टर्म्स ऑफ दैट, अभी गाइस आपको प्रॉपर समझा कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, उसकी इक्वेशन क्या होता है, गोल कैसे ट्रैक करते हैं, तो आपको प्रॉपर समझा. बट गाइस आप उसको इन द टर्म्स ऑफ उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो आप? पहली बात है, राइट कंप्लीटिंग क्लिकेबल पीपीसी एड that are highly relevant to the keyword search query and your intent audience. All the better if you are targeting high intent and middle to long tail keywords that indicate a searcher who is late in buying cycle are those customers who are mostly likely to convert. मतलब आपको क्या करना है, आप जो एड रन करोगे, सर्च एड, डिस्प्ले एड, उसको थोड़ा अच्छे से ऑप्टिमाइज करना. आप जो कीवर्ड्स डालते हो, अभी सर्च एड मतलब क्या गाइस बता देता हूँ. सर्च एड्स, now guys this is the search ad, right? अभी इधर एडी है, अभी कभी ये सर्च होने के बाद ये आपको एड डिस्प्ले हुई, राइट? इसलिए उसको सर्च एड बोलते हैं. तो भी गाइस आपको क्या करना है, आपने जो कीवर्ड्स यूज किए हैं सर्च एड करने के लिए, कीवर्ड्स आते हैं, वो कीवर्ड्स आपको हेडिंग्स में भी यूज करना पड़ता है, आपका जो एक डिस्क्रिप्शन होता है उसमें भी आपको यूज करना पड़ता है. इससे क्या होता है, आपका ऑप्टिमाइजेशन रेट बढ़ जाता है, क्योंकि जब भी एक ऑडियंस उसको जैसे चाहिए उसका कीवर्ड सर्च करेगा, वही कीवर्ड हेडिंग्स में रहेगा, डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आपके ऐड के साथ फैमिलियर बनेगा, क्लोज बनेगा, तो ऐड पे वो क्लिक करेगा, राइट? क्लिक करने के बाद वो वेबसाइट पे जाएगा, नहीं तो कौन सा भी आपका कन्वर्जन वो करेगा, क्योंकि उसको फैमिलियर बना. इसलिए आपको कीवर्ड्स यूज करना बहुत कंपलसरी होता है. मेंटेन हाई डिग्री Maintain a high degree of relevance between your ads and corresponding landing page. Your landing page should deliver on the promise of your ad, the call to action, and make it easy for searcher to complete that action, be in a sign up or newsletter. अभी guys समझो, समझो मैं ad run कर रहा हूँ corporate service की, I am going to run an ad on search ad that I am going to provide you digital marketing services. डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज में प्रोवाइड करता हूँ, ऐसे एड मैंने बनाया. अभी गाइस उसी एड पे क्लिक करके मैंने दूसरा लैंडिंग पेज दे दिया, मतलब ग्राफिक डिजाइन का दे दिया, तो कन्वर्जन रेट होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है, क्योंकि गाइस ऑडियंस किसमें इंटरेस्टेड है, डिजिटल मार्केटिंग के सर्विस में इंटरेस्टेड है. जब वो एड पे क्लिक कर रहे हैं, उनको जो सामने लैंडिंग पेज आ रहा है, वेबसाइट आ रहा है, वो ग्राफिक डिजाइन के आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो कन्वर्जन रेट नहीं होएगा. तो इसका मतलब क्या, अब जिसके एड रन कर, जिस
टॉपिक की आप एड रन करो, उसी टॉपिक का आपका लैंडिंग पेज होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। एड दूसरी टॉपिक की, लैंडिंग पेज दूसरा टॉपिक का, ऐसा रखोगे ना गाइस तो आपका कन्वर्जन रेट नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब यही होता है इस पैराग्राफ। गॉट इट? उसके बाद गाइस, टेस्ट योर लैंडिंग पेज, कंडक्ट ए बी टेस्ट। Conduct A/B test to find the right layout, copy, and color that pulls the highest percentage of site visitors to fill out your form, call in, or otherwise convert to a valuable leads of customer. Yes, आपको क्या करना पड़ता है ना, A/B टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। दो टाइप्स के लैंडिंग पेज बनाना पड़ता है, अलग अलग के। एक लैंडिंग पेज दूसरा कलर का, दूसरा लैंडिंग पेज दूसरा कलर का, उसका अलग अलग स्ट्रक्चर हो। और आपको क्या करना, दोनों लैंडिंग पेज से आपको एड रन करना है। एक दूसरे एड लैंडिंग पेज से, दूसरे लैंडिंग पेज से। तो वो जब भी आपके एड रन हुएंगे, तभी आपको समझेगा कि आपके जो ऑडियंस आपके वेबसाइट पे आ रहा है लैंडिंग पेज, उसमें से कौन सा लैंडिंग पेज प्रॉपर है। जो प्रॉपर रहेगा तो उसमें कन्वर्जन रेट ज्यादा रहेगा। जिसका स्ट्रक्चर, जिसका कलर प्रॉपर रहेगा तो उससे आपको समझेगा उस वेबसाइट पे, उस लैंडिंग पेज पे कन्वर्जन रेट ज्यादा रहेगा। तो उससे आपको समझेगा कि हाँ ये प्रॉपर है, ये लैंडिंग पेज है। तो इसके आगे से जितने भी मैं एड रन करूंगा, मैं यही लैंडिंग पेज यूज करूंगा। उसको बोलते हैं एबी पेज। गॉट इट गाइस? एवरीवन प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, आपको समझा रहेगा। सब लोग गाइस, ईच एंड एवरीवन। ओके ओके, आई विल जस्ट रिपीट वंस अगेन, एबी टेस्ट। गाइस आपको क्या करना है, अभी लैंडिंग पेज मतलब क्या, पहले मैं आपको ये बता दूंगा। लैंडिंग पेज मतलब क्या है, एक एड्स पे क्लिक होने के बाद वो जो वेबसाइट पे जा रहे हैं उसको बोलते हैं लैंडिंग पेज। अभी गाइस, ये मेरी जो एड है, एड रन कर रहा हूँ और फुल स्टैक डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, इस टॉपिक का मैं एड रन कर रहा हूँ। ठीक है, सर्च एड कर रहा हूँ, सर्च एड। ऐसा सोचो, इमेजिन करो आई एम रनिंग एड ऑफ सर्च एड, मतलब इस एड को इस तरह एड रन कर रहा हूँ मैं ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। तो मैंने क्या किया गाइस, हेडिंग्स, डिस्क्रिप्शन सब डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के बारे में लिखा। ठीक है, बट गाइस मैंने क्या किया, गलती से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का दे दिया, दे दिया, तो लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए। गॉट इट? तो कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइज नहीं होगा। इसका मतलब एक सेकंड में, इसका मतलब क्या होता है, आपकी जो एड है और आपका जो लैंडिंग पेज है वो सेम होना, सेम टॉपिक। अभी गाइस, टेस्ट योर लैंडिंग पेज, एबी टेस्ट मतलब गाइस, अभी ये मेरा प्रॉपर स्ट्रक्चर है। दिस इज माय प्रॉपर स्ट्रक्चर। ओके, इसमें जो मैं कलर्स यूज किया प्रॉपर है। इसके साथ साथ मैं और एक अलग सी एक बनाऊंगा लैंडिंग पेज। ये मेरा एक फर्स्ट लैंडिंग पेज होगा, इसको हम लोग देते हैं ए फॉर एप्पल, इसको नाम देते हैं ए लैंडिंग पेज। ये मैंने प्रॉपर बना, इसी कंटेंट के साथ, बट थोड़ा स्ट्रक्चर अलग रहे, कलर स्कीम्स अलग रहे, वो मैं बी लैंडिंग पेज बना। अभी मुझे इन दोनों में से देखना है कि मेरे ऑडियंस है ना, तो उनको कौन सा लैंडिंग पेज पसंद है। अभी आपको कैसे समझेगा उनको कौन सा लैंडिंग पेज है, जिस लैंडिंग पेज पे ज्यादा कन्वर्जन हो रहे हैं उसका मतलब है वो लैंडिंग पेज अच्छा है। तो मुझे देखना है मेरे ऑडियंस को कौन सा लैंडिंग पेज पसंद है, ए वाला पसंद है कि बी वाला। उसके लिए मैं क्या करूंगा गाइस, एबी टेस्ट करूंगा। एबी टेस्ट मतलब क्या, एक ऐड है ना, मैं लैंडिंग पेज ए करके रन करूंगा और दूसरा जो ऐड है उस ऐड को मैं बी का लैंडिंग पेज अटैच करूंगा और दोनों ऐड को मैं पब्लिश करूंगा। पब्लिश करने के बाद गाइस, जो जब भी ऑडियंस मेरे वेबसाइट पे आ रहे हैं, मेरे लैंडिंग पेज पे आ रहे हैं, तो दोनों में से जिस लैंडिंग पेज पे ज्यादा कन्वर्जन हो रहा है वो लैंडिंग पेज आपके ऑडियंस को पसंद है, ऐसा आपको समझेगा। तो इसके आगे के जो भी आपके लैंडिंग पेज हो रहे हैं, जो भी आपके एड्स होने वाले हैं, वो लैंडिंग पेज का यूज, इसका मतलब है एबी टेस्ट। तो आपको ऐसा एबी टेस्ट एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, जिससे आपको प्रॉपर समझ जाए। गॉट इट गाइस? नाउ यस, थैंक यू सो मच। Yes. Now, guys, we are just moving forward. Now, in the terms of ad start, optimization PPC conversion start with right figures. PPC conversion मतलब क्या, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, सर्च एड
जब भी आप सर्च ऐड कर रहे हो तो आपके जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स मतलब सर्च में, उसको आपको ना इस टाइटल्स में डालना पड़ता है। ये टाइटल है, इस डिस्क्रिप्शन। इससे क्या होता है गाइस, जब भी आपके ऑडियंस को कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, वो वही कीवर्ड्स उनको हेडिंग्स में भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है, तो उन लोग क्या ना फैमिलियर होते हैं उसके ऐड के साथ। उस ऐड के साथ जब भी वो फैमिलियर होते हैं, उस ऐड पे क्लिक करने के बाद, इससे क्या होता है, आपका जो कन्वर्जन रेट परसेंटेज है ना, वो इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए गाइस आपको वो करना है, आपके राइट कीवर्ड्स आपको यूज करना है। When you start thinking about conversion rate optimization, it is tempting to feel around with the buttons and forms and other flow in the funnel design element. That might make or break the sales. But remember that a part of optimization conversion is getting the right visitor to your site in the first place. इसके लिए आपको राइट कीवर्ड्स, आपने आपकी वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस की, और आपने कीवर्ड यूज किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कोर्स के लिए यूज कर रहे हैं आप आपका कीवर्ड। तो कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के बाद आपको ऐड, उसको आपकी ऐड दिखेगी, पर आपके एड्स पे क्लिक करने के बाद वो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस पे जा रहा है, मतलब कुछ तो इश्यू है ना। इसलिए आपका जो मेन मोटिव है, आपका जो बिजनेस, उसके रिलेटेड ही आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अलग है और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज अलग है। आपको क्या करना, मतलब आपके जो कीवर्ड्स होते हैं आपको राइट कीवर्ड्स, इससे क्या होता है, यस, हाई ट्रैफिक इज यूजलेस इफ नन ऑफ द पीपल कन्वर्ट। ये देखो, मैं जैसे फर्स्ट पहले में बोला, हाई वेब ट्रैफिक, जितनी भी आपको ट्रैफिक हो रही है, इट्स वेरी गुड, इट इज यूजलेस इफ नन ऑफ दोस पीपल्स कन्वर्ट। कन्वर्ट ही नहीं हो रहा तो फायदा ही नहीं है। With search engine marketing, increasing your quality traffic is a matter of bidding on and optimizing the right keyword. मतलब सर्च इंजन मार्केटिंग करो तो आपको राइट कीवर्ड यूज करना है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये बहुत बड़ा फर्क है। अब डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के ऐड रन कर रहे हो, उसमें आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का भी कीवर्ड डाला, और किसने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और उसको आपकी ऐड दिखी, तो क्लिक करके वो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस पे जाने वाला है, तो उधर वो कन्वर्जन नहीं करेगा, क्योंकि सर्च क्या किया, डिजिटल कोर्स सर्च किया, मतलब वो ऑडियंस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में इंटरेस्टेड, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज में। बेटर कीवर्ड ट्रैफिक डेटा मींस यू कैन बेटर डिसाइड डिसीजन अबाउट योर वेबसाइट एंड कॉपी एंड बेटर टारगेट द राइट कीवर्ड्स। तो राइट कीवर्ड्स आपको यूज करने हैं, इससे आपका कन्वर्जन रेट हो सकता है। नाउ गाइस, अभी ये था इन द टर्म्स ऑफ एड, सर्च, अपना सर्च एड, फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड, ये पीपीसी का था, राइट कीवर्ड्स आपको यूज करना। Now we are going to the landing pages. CRO in the terms of landing page. The quality of your individual landing page can have a dramatic effect on conversion rate. Think about it. A prospective client stumbles across your page as a result of a specific search query. If the content and the offering of that page aren't relevant to what they are looking for, expecting to find, they will return to the search and will lose that page. इसका मतलब क्या है यहाँ तक कि आप जो कीवर्ड यूज करने वाले, आप जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने वाले, जो सर्च ऐड कर रहे हो, उसमें जो कीवर्ड्स आप यूज करने वाले हो, वो कीवर्ड्स आपके बिजनेस के रिलेवेंट होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, ध्यान करो। एंड द नेगेटिव इफेक्ट डू नॉट स्टॉप दैट। पोरली कंस्ट्रक्ट लैंडिंग पेज कैन आल्सो कॉज योर क्वालिटी स्कोर टू ड्रॉप। आपका लैंडिंग पेज प्रॉपर नहीं है, मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि गाइस 95% जो आपके ऑडियंस होते हैं वो मोबाइल पे आपकी वेबसाइट ओपन करते हैं, मोबाइल पे सर्च करते हैं, और 5% डेस्कटॉप यूज करते हैं। तो आपकी जो वेबसाइट है उसका स्ट्रक्चर मोबाइल पे प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर कॉल टू एक्शन नहीं है, तो इशू हो जाएगा ना गाइस। दैट्स व्हाई गाइस यू हैव टू मेक योर लैंडिंग पेज इन अ प्रॉपर वे। Quality score drop, which will turn in ratio of cost per action and reduce your ad rank so that it's harder to be in a spot in Google ad. So guys, how to improve your landing page जिससे आपका conversion rate optimize हो जाएगा, उसके लिए guys ये मैंने points निकाल दिए। So what makes your good landing page? Common best practice for page designing including two key elements. पहली बात है compelling headlines. आपके जो headlines होते हैं, जैसे कि ये वाला, वो प्रॉपर होना चाहिए। ये हेडलाइन डिनोट करता है कि नीचे का जो कंटेंट है वो किसके रिलेटेड है। ध्यान में रखो, ये जो हेडलाइन होता है, अभी मैंने लिखा फुल स्टैक डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, सर्विसेज मतलब ये डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस का पेज, बट आपने इधर अलग का कंटेंट डाला, अलग,
ऊपर का पढ़ रहा है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस और नीचे आके मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में समझता है, तो ऑब्वियसली वो आपकी वेबसाइट से एग्जिट हो जाएगा, ऑब्वियसली आपका कन्वर्जन नहीं होएगा। तो फर्स्ट थिंग इज दैट आप जो हेडिंग लिख रहे हो वो प्रॉपर लिख रहे हो कि नहीं, हो कि नहीं वो देख। उसके साथ जो हेडिंग लिख रहे हो उस रिलेटेड ही कंटेंट नीचे है कि नहीं आपके बॉडी पार्ट में। आपकी जो वेबसाइट है उसके बॉडी पार्ट में वो प्रॉपर है कि नहीं वो देख। दैट्स द मेन। Create a striking headline that is relevant to your PPC keyword and compel prospective client to remain on the page to fulfill your desired action. हेडलाइन में अपना गाइस ये जो हेडलाइंस होते हैं उसमें आपको कीवर्ड्स भी डालने पड़ते हैं। अभी जैसे मैंने इधर डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस सर्च करे तो मेरा ए पेज उसको दिखेगा। जब वो इस पेज पे आएगा तभी उसको पहला दिख रहा है कि उसने जो सर्च किया था उसके रिलेटेड ये हेडिंग है। उसके रिलेटेड हेडिंग है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, नीचे भी उससे रिलेटेड प्रोवाइड। तो आपको गाइस आपको क्या करना है, आपके हेडिंग्स में कीवर्ड्स भी आपको डालना है। उसके साथ साथ आपका जो हेडिंग होता है उसके टॉपिक रिलेटेड ही आपके बॉडी पार्ट में, वेबसाइट के बॉडी पार्ट में वो कंटेंट, ठीक है, तो ध्यान में रखो गाइस। इस तरह आपका कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइज हो जाएगा। उसके बाद गाइस वो साइड टारगेट कॉपी, द कंटेंट ऑफ योर पेज शुड क्लियरली कम्युनिकेट योर ऑफरिंग, स्पीक डायरेक्टली टू द कीवर्ड्स, also show it with that ad group. Use bullet list to prevent copies from becoming too lengthy or overlap. मतलब इसका मतलब क्या है इस टॉपिक का, अब जो कंटेंट लिखने वाले हो आपके वेबसाइट पे आपके लैंडिंग पेज पे वो प्रॉपर बेस लिखो गाइस, उसमें बुलेट पॉइंट्स पे आप लिखो। अभी जैसे मैंने इधर अलग अलग बना है, एक ही पूरा पैराग्राफ मत बन लिखो गाइस। एक ही पूरा पैराग्राफ बनोगे जब वो पैराग्राफ में पढ़ेगा तभी वो बोर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट एग्जिट कर देगा। आपकी वेबसाइट को आपको बुलेट पॉइंट छोटे छोटे पैराग्राफ में डिवाइड करना। आप एक बड़ा पैराग्राफ लिख रहे हो तो उसको दो पैराग्राफ में, तीन चार पैराग्राफ में डिवाइड करो, ये तो बुलेट पॉइंट यूज करो जिससे उन लोग जब भी पढ़ेंगे उन लोग को इंटरेस्टिंग आ जाए। और उस कंटेंट में आपके कीवर्ड्स भी होना कंपलसरी है गाइस। वो जो सर्च कर रहे हैं जिस कीवर्ड लोग सर्च करते हैं वो कीवर्ड भी आपके कंटेंट में होना कंपलसरी है गाइस। इससे उनका फैमिलियर बन जाता है। तो ज्यादा भी कीवर्ड यूज मत करो गाइस। मतलब आप ये यूज करो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, तो आप बार बार डिजिटल मार्केटिंग सर्विस यूज करो कंटेंट, इसलिए उन लोग बोर हो जाएंगे गाइस। ये एसईओ का एक टेक्निक है कि आपको एक ने तो 2% से ज्यादा कीवर्ड यूज नहीं करने आपको। हाँ, उसके रिलेटेड आप यूज कर सकते हो। रिलेटेड मतलब सिमिलर कीवर्ड, जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस आपका मेन कीवर्ड है, अब ऑनलाइन मार्केटिंग सर्विसेज ऐसे रिलेटेड कीवर्ड्स आप यूज करते हो। पर आपका कीवर्ड्स होना कंपलसरी कंटेंट में, वो भी लिमिटेड, ज्यादा नहीं। उसके बाद गाइस I guess clickable call to action. Call to action मतलब बटन. Make sure your CTA button stand out visually, appears clickable and use short and gain focus time. Guys, आपका जो मेन कन्वर्जन होता है ना वो बटन्स पे होता है। जो बटन्स होते हैं ना बटन्स, उसको प्रॉपर डिनोट करो। इधर देखो मैंने कैसा किया, इधर अपॉइंटमेंट लग दिया, ठीक है, अपॉइंटमेंट इधर एक ऑप्शन। उसके बाद चलो किसका इधर ध्यान नहीं गया तो नीचे पड़ेगा, तो इधर भी अपॉइंटमेंट है, ये प्रॉपर उसको दिखना चाहिए। चलो अभी अपॉइंटमेंट ऊपर गया नहीं आता तो इधर भी उसको अपॉइंटमेंट दिख रहा है, इधर भी उसको अपॉइंटमेंट दिख रहा है, तो सब मैंने कॉल टू एक्शन डाल। तो चलो कभी कभी ऑडियंस क्या होते हैं कंटेंट पढ़ने के टाइम वो लोग भूल जाते हैं उनका एक्शन क्या है, इस वेबसाइट पे आके उनको कौन सा एक्शन करते हैं उन लोग भूल जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपकी जो कॉल टू एक्शन है उसको प्रॉपर हाईलाइट करना और हर जगह पे उसको डिस्प्ले करना। अभी देखो ना गाइस, अमेजोन पे हम लोग जाते हैं, हर जगह पे बाय नाउ रहता है, उससे कन्वर्जन रेट बढ़ता है, क्योंकि एक बार ऑडियंस आपके पेज को देखना चालू करते हो उनका जो मेन एक्शन है उन लोगों को भूल जाते हैं। इसलिए गाइस आपका जो बटन है हर जगह पे डाल। अभी गाइस इधर देखो मैंने कैसा किया, नीचे जब आए तो कॉल ना होगा पर इधर मैंने एक एरो दे दिया, इस पे क्लिक करके बाद वो टॉप पे जा सकता है, ऑप्टिमम अपॉइंटमेंट कर सकता है, व्हाट्सएप नाउ कर सकता है। तो इस तरह आपको आपके कॉल टू एक्शन यूज करने हैं हर जगह पे। ऊपर ही बस आपने यूज किया टॉप पे, नीचे कुछ नहीं किया तो कन्वर्जन रेट नहीं बढ़ेगा आपका, कि वो पढ़ के नीचे आएगा तो उसको कुछ दिख रहा ही नहीं है कन्वर्जन रेट, तो कैसा करेगा। दैट्स द मेन थिंग है, आपको कॉल टू एक्शन हाईलाइटेड और हर जगह पे आपको यूज करना।
use friendly lead capturing form. A good form includes all the fields needed to fulfill your offer, but not so many prospective clients are visual overload. Think carefully about what information is truly necessary to capture as you fill your form. Guys, कभी कभी कौन सी कंपनीज क्या करते हैं ना, उनके जो फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग पूछते हैं। नाम, नंबर, ईमेल आईडी, कौन सी सिटीज में रहते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका जॉब डेजिग्नेशन क्या है, कौन से जॉब के लोकेशन पे आप काम करते हैं, ये सब पूछते हैं। इससे क्या होता है गाइस, आपका कन्वर्जन रेट नहीं बढ़ता। सोचो ना गाइस, आप एक एक्शन करने जा रहे हो, एक फॉर्म फिल करने जा रहे हो, चलो मैं अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर देता हूँ और आपके पास एक फॉर्म आ गया। अभी इसमें मैंने क्या पूछा है, आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, इंटरेस्टेड इन एंड एनीमेल्स। अभी सोचो गाइस, मैंने और क्वेश्चन पूछता रहेगा। जॉब लोकेशन क्या है, आपका जॉब डेजिग्नेशन क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी कंपनी कौन सी है। तो जब भी आप आओगे इस फॉर्म पे, आप इतना फिल करो और फिल करना है, तो आप पूरा फॉर्म नहीं फिल करो, आप डायरेक्टली इसको बंद करो फॉर्म को। तो फॉर्म को बंद किया मतलब आपका कन्वर्जन नहीं हुआ गाइस। तो आपको क्या करना है गाइस, सोचो ना, ऐसा हम लोग की डेली लाइफ में कभी भी हम लोग वेबसाइट पे स्क्रॉल डाउन करते, हम लोग को ऐड दिखते, हम लोग उस पर क्लिक करते, फॉर्म ओपन होता है, पर सोचो गाइस उस टाइम आपका फॉर्म और लेंदी रहता है, तो आप फॉर्म नहीं फिल करते, क्योंकि गाइस आप फेसबुक पे क्यों गए, टाइम पास के लिए गए, एक मूड को फ्रेश करने के लिए आ रहे हो, पर फ्रेश करने के साथ साथ आपको इतना बड़ा फॉर्म भरने पड़ रहा है, आप नहीं भरोगे गाइस, आप डायरेक्टली कट करोगे। तो आपका जो फॉर्म होता है वो लिमिटेड होना चाहिए। नाम, नंबर, ईमेल आईडी, तीन ही पूछो ना गाइस। एक बार उनका फॉर्म फिल हो गया, आप उनसे कनेक्ट करने वाले हो, कनेक्ट करने के बाद उनको पूछो आप कौन से लोकेशन पे रहते, और वो इंपॉर्टेंट होता है गाइस। क्योंकि मैं जब भी हम लोग सेल्स वाले काम करते हैं ना गाइस, सेल्स वाला जब भी एक बार एक ऑडियंस को कॉल कर, तो उसके साथ फैमिलियर बनना पड़ता है। हाँ गाइस, किधर रहते हो आप, कौन सी जॉब में रहते हो, तो ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो आपको फैमिलियर होने में हेल्प करते हैं। अभी वही टॉपिक्स आपने फॉर्म में इंक्लूड कर दिया, तो आप डायरेक्टली उनके साथ फैमिलियर नहीं बन सकते जब भी आप उनके कॉल के साथ कनेक्ट रहते। तो इससे अच्छा आपका जो फॉर्म होता है ना, वो लिमिटेड रखो। नाम, नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, बस। को हाँ, चलो फॉर एग्जाम्पल, हाँ कर पावा आपका, आपको उनसे काम करते हैं, आपका बिजनेस कौन सा है, आप बिजनेस कौन सा सर्विसेज है, ये हम लोग का एक फ्रेंडलीनेस बनता है। तभी जाके ऑडियंस सामने वाला उसके मन में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, वो इजीली आपको मिलेगा और आपका बॉन्डिंग कन्वर्ट होता है। तो दैट्स द मेन थिंग वेयर यू हैव टू यूज द फॉर्म्स इन अ इजी वे और लिमिटेड क्वेश्चन जो आपको जरूरत है, ज्यादा मत पूछो। उसके बाद गाइस, अट्रैक्टिव ओवर डिजाइन। Attractive over design should be plain and uncultured, which conveys both trustworthiness and professionalism to prospective clients. Design should also be consistent with your brands in order to prevent disjoining browsing experience for the users. Guys, attractive overall design. आपकी जो ओवरऑल डिजाइन है ना गाइस, वो प्रॉपर होना चाहिए। इसमें जो आप कलर यूज कर रहे हो वो सेम होना चाहिए। अभी ऐसा नहीं ना, होम पेज पे आप अलग कलर यूज कर रहे हो और अबाउट पेज पे आप अलग डिजाइन यूज कर रहे हो। सोचो ना गाइस, आपने होम पेज बनाया, ये होम पेज बना, आपको अच्छा लगा, और आपने क्या किया गाइस, अबाउट पेज पे अपने दूसरा डिजाइन दिया। आपको ऑडियंस को, आपके जब ऑडियंस आपके वेबसाइट पे आ गए, उनको होम पेज अच्छा लगा, और जब भी आप अबाउट पेज पे जाते, उनको टेम्पलेट अच्छा नहीं लगा, डिजाइन नहीं अच्छा लगा, तो ऑब्वियसली उन लोग क्या करेंगे, आपकी वेबसाइट एग्जिट करेंगे। इसलिए गाइस, आपको क्या करना है, जब भी आप वेबसाइट बना रहे हो, तो आपका जो होम पेज का जो कंटेंट होता है, होम पेज का जो डिजाइन होता है, वो उसके रिलेटेड ही सिमिलर हर पेज पे यूज करना है। जैसे मैंने किया है, होम पेज पे कलर स्कीम, अबाउट पेज पे मैंने क्लिक किया, कलर स्कीम, हाँ स्ट्रक्चर अलग है थोड़ा, बस कलर स्कीम। कॉर्पोरेट सर्विस पे क्लिक किया, तो इस तरह आप कंसिस्टेंसी, इससे क्या होता है गाइस, आपके जो ऑडियंस है उन लोग कन्वर्जन रेट करेंगे, कन्वर्जन एक्शन करेंगे। गॉट इट गाइस, हाउ टू ऑप्टिमाइज योर कन्वर्जन रेट। आपको समझाएगा तो प्लीज चैट सेक्शन में यस यस कर दो, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग। यस।
Yes, yes, Prashant. Also use the same font. Yes, great, great. तो जैसे मैंने भी यूज किया, देखो सेम फॉन्ट मेरे जैसे भी यूज किया वो भी सेम फॉन्ट्स. ग्रेट. So guys, this is how you have to just optimize your conversion rate. अभी guys सबसे मेन इम्पोर्टेंट इस टॉपिक का आपके जो ऑडियंस होते हैं वो कौन से उनकी जो जर्नी होती है वो कैसी होती है वो हम लोग देखें. गाइस इधर मैंने एक फनल बनाया. फनल, दिस इज द फन. गाइस पहली बात आप क्या करते हो, आपके बिजनेस के बारे में आप अवेयरनेस जनरेट करते हो आपके ऑडियंस में. अवेयरनेस कैसे जनरेट करते हो गाइस आप? विद द हेल्प ऑफ एड्स. लेट्स टेक फेसबुक एड विद द हेल्प ऑफ ट्रैफिक ऑब्जेक्ट. ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव से आपने क्या किया, एक अवेयरनेस बढ़ा दिया, राइट. उसके बाद एक बार उन लोग अवेयरनेस बढ़े, उसमें से आधे लोग इंटरेस्टेड रहे. 100 जन तक आपने अवेयरनेस बढ़ दिया तो उसमें से 50 जन आपके इंटरेस्टेड लोग थे. मतलब उन लोग इंटरेस्टेड रहेंगे, उन लोग आपके एड्स पे क्लिक करेंगे. एड्स पे क्लिक करना मतलब क्या होगा, इंटरेस्टेड होगा, राइट. एड पे जब भी हम लोग कभी क्लिक करते हैं, जब भी जाके हम लोग उस प्रोडक्ट में उस बिजनेस में हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं, तभी जाके हम लोग उस पे एड पे क्लिक करते हैं. अवेयरनेस बन गया 100 जन को, उसमें से 50 जन इंटरेस्टेड हो गए. एड्स पे क्लिक करना मतलब इंटरेस्टेड हो गए. उसके बाद उस एड पे क्लिक करने के बाद वो आपके वेबसाइट पे जाते हैं. वो आते हैं थर्ड स्टेप पे, डिजाइन. मतलब उन लोग सोचते हैं, पूरा आपकी लैंडिंग पेज देख रहे हैं, उन लोग आपके बारे में सोच रहे हैं क्या है, कैसी आपकी वेबसाइट है. आपका इधर डिसाइड होता है कन्वर्जन एक्शन. इधर आके उन लोग को आपकी वेबसाइट में तो आपका लैंडिंग पेज अच्छा नहीं दिखा तो उन लोग ये लास्ट एक्शन नहीं कर. इफ दिस इज प्रॉपर, ये जो थर्ड स्टेप है, इधर आके उन लोग को आपका लैंडिंग पेज प्रॉपर लगा, आपका स्ट्रक्चर प्रॉपर लगा, उसके बाद उन लोग इधर एक्शन करें. मतलब आपने 100 जन को अवेयरनेस किया, उसमें से 50 जन ने इंटरेस्टेड दिखाया, क्लिक किया. क्लिक किया मतलब इंटरेस्ट. 50 जन ने क्लिक किया मतलब आपके वेबसाइट पे आए. 50 जन ने सोचा. 50 जन में से बस बस 10 जन ने आपकी एक्शन कर. तो गैस इस तरह होता है आपका आपकी ऑडियंस की जर्नी. तो आप बहुत जल्द को अवेयरनेस कर रहे हो, बट जब ये अवेयरनेस ज्यादा जन को कर रहे हो, बट उस अवेयरनेस में जो उन लोग आपके बिजनेस की तरफ जो जर्नी होती है आपकी बिजनेस की तरफ, उसमें जो हर टॉपिक्स होते हैं, शॉप होते हैं, उधर भी आपको कॉन्सेंट्रेशन करने की जरूरत है. आप 100 जन को अवेयरनेस कर रहे हो और डायरेक्टली आप बोल रहे हो मेरा एक्शन होना चाहिए. 100 जन को अवेयरनेस किया, उसमें से 100 के 100 एक्शन करना चाहिए, ऐसे नहीं होगा guys. उसके आपके लिए ये दो को भी आपको इम्पोर्टेंट देना पड़ता है. 100 जन को अवेयरनेस किया, आपका बटन प्रॉपर है क्या नहीं, अप्लाई नाउ लर्न नाउ प्रॉपर है कि उस पर डिपेंड इंटरेस्टेड है. इंटरेस्टेड हो गया, आपका लैंडिंग पेज प्रॉपर है क्या, वो प्रॉपर है तो आपका एक्शन. तो ये दो शॉप भी आपको इम्पोर्टेंट है ना. अब डायरेक्टली अवेयरनेस करके आप एक्शन को नहीं काउंट कर सकते. तो दिस इज हाउ द योर ऑडियंस इज जर्नी इज. ये गाइस मैंने इधर लिखा, when you generate awareness in 100 audience, then only 20 audience will be interested. 100 जन को आपने अवेयरनेस करा, उसमें से 20 जन बस इंटरेस्ट. From that, only 10 audience will think of your products. 20 जन से बस 10 जन आपके प्रोडक्ट्स के बारे में सोचेंगे, मतलब डिजायर करेंगे. आपके वेबसाइट पे आके उन लोग सोचेंगे, पूरा देखेंगे. और उस 10 जन में से ओनली 5 to 3 ऑडियंस विल टेक दैट. उन लोग एक्शन करें. तो गाइस एक जो मेन होती है इंटरेस्ट और डिजायर, उसको भी आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, उसको भी आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर देना पड़ता है, तभी जाके आपका एक्शन. गॉट इट गाइस, ईच एंड एवरी वन. समझा गाइस? यस, थैंक. So guys, this was all about the conversion rate optimization, where you have to just use each and every techniques which I have taught you to develop your conversion rate. Guys ध्यान में रखो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के साथ आपको कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन भी करना. ओके गाइस. तो गाइस जस्ट आई हैव जस्ट कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम दिस साइड. आपको कुछ डाउट्स रहेगा तो आप आपके चैट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं. एनी डाउट्स अबाउट कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन? anyone जिसको भी डाउट्स रहेगा अबाउट दिस टॉपिक, यू कैन जस्ट लेट मी नो.
No, Prashant, it is not any tools to improve the plugin out. You have to just concentrate on एक ये जो टॉपिक है वो एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग यूज करते हैं, जिनको प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया. मैं ये पर्सनली यूज करता हूँ, दैट्स व्हाई आई हैव शेयर्ड दिस नॉलेज. इसके लिए कौन सा अलग से टूल्स नहीं है, कुछ नहीं. बस आपको क्या करना है, आपको एनालिटिक्स का यूज करना है. इसमें आपको आपका जो मेन गोल है वो आपको उसको आपको ट्रैक करना है. एक बार वो आपको ट्रैक कर दिया तो आपको समझ जाएगा. आपको तो ट्रैफिक कैसी आती है वो एनालिटिक्स समझता है, और कितने आपके जो कन्वर्जन है, आपका जो गोल क्या है, इसके हेल्प से आपको वो भी समझ जाएगा कि कितने जन आपके गोल कंप्लीट कर रहे हैं. उस तरह आपको कन्वर्ट करना है. आपको बस क्या करना है गाइस, जैसे मैंने टॉपिक्स बताया, लैंडिंग पेज को इस तरह आपको इंप्रूवमेंट करना है. पीपीसी के लिए आपको प्रॉपर कीवर्ड्स यूज करना है. एड्स के लिए प्रॉपर ये यूज करना है आपको. लैंडिंग पेज थोड़ा एबी टेस्ट कर दो प्रॉपर बेस पे. इस तरह आपको समझेगा आपको कन्वर्ट करना है. Got it, everyone? Content tool. Sorry, I didn't get you, Shweta. Content tool समझा नहीं, मतलब किस बारे में आप बोल. Content tool. How to find the right content. कंटेंट के लिए ना आप दो टूल यूज कर सकते हो. एक आंसर द पब्लिक, मतलब कंटेंट प्रॉपर कंटेंट आइडियाज फाइल करने के लिए आप आंसर द पब्लिक यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको समझेगा कि आपके ऑडियंस किसके रिलेटेड सर्च कर रहे हैं. ये वाला, ये ओपन गाइस, ये टूल है. आई डोंट नो, इट इज नॉट ओपनिंग इन अ प्रॉपर वे इन माय लैपटॉप. उसके साथ साथ गाइस आप कोरा भी यूज कर सकते हो. कोरा, जिसमें कोरा में कैसे उन लोग उनके जो डाउट्स होते हैं उन लोग वो सर्च करते हैं. सी है इधर आपके 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 प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको इधर लिखना है. यस, मोज इज आल्सो देयर. यस, यू कैन यूज मोज आल्सो, बट आई जस्ट सजेस्ट दिस वन आल्सो, दिस टू टॉपिक्स, क्योंकि कोरा एक ओपन सोर्स है. ओपन सोर्स, इसमें रियल सर्चेस होते हैं. आपके मोज सब लोग नहीं यूज करते गाइस. मोज कैसे एक टूल है, उन लोग क्या करते हैं, गूगल सर्च पे जो हो रहा है गूगल उन लोग उनके टूल्स में डालते हैं मोज पे. बट कोरा कैसा है, आपके ऑडियंस के लिए भी यूज है. आपके ऑडियंस को जो डाउट रहेगा उन लोग इधर सर्च करने वाले. उसके हेल्प से आप कर सकते हो. अभी डिजिटल मार्केटिंग है, मेरा प्रोडक्ट है, अभी मेरे प्रोडक्ट रिलेटेड किसने किसने सर्च किया, इधर आपको मिल जाता है. तो इसके बारे में आप कंटेंट लिख सकते हो. इसके साथ साथ गाइस आप देखो, आपको मैं बता देता हूँ, गूगल भी आपको बता देता है डिजिटल मार्केटिंग. अब जब भी बॉटम पे आता हो ना, इधर रिलेटेड सर्चेस आते हैं. अभी ये रिलेटेड सर्चेस गूगल ने नहीं दी, गूगल के प्लेटफॉर्म में अलग अलग ऑडियंस ने सर्च की. इसका भी यूज कर सकते हैं ऑडियंस के प्रॉब्लम जिसके रिलेटेड आप कंटेंट में. गॉट इट एवरीवन? So guys, I just let me know how what is your feedback about this session. आपको इस सेशन कैसा लगा, बस आप चैट सेक्शन में आप बता सकते हैं. Just let me know. Just let me your feedback. Have you like or not this session? Okay. Thank you so much, Kirti. Okay. Thank you so much, everyone. Thank you for your valuable feedbacks. Okay. So guys, I just hope so you will just implement this in your process of digital marketing. Okay. So guys, thank you for today. Thank you for your valuable time which you have spent with me. Okay. Thank you so much for your feedback, guys. It was really helping for me also. Take care, guys. Bye.